Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today we are going to learn a lesson of grade 8th English subject unit 3 3.3 the last leaf. A very beautiful chapter and we shall start with the warming up exercise. The very first question of warming up exercise is, suppose you suffer from a long term illness 1 or 2 weeks. That means you have been sick for 1 or 2 weeks now. What should you do and what should you avoid? मतलब आपको क्या करना चाहिए और क्या avoid करना चाहिए. Fill up the table of do's and don'ts. Now this part, do's and don'ts, this is a kind of writing skill that you may have in your 10th grade. So this is just a beginning for your writing skill. You can learn how to do do's and don'ts in a table format. So let's start over here. Do's, don'ts. Now if it is given, go to a doctor for diagnosis. Definitely if you are not well, you should go to the doctor. This is your do's. And what should you do? What should you do? Don'ts. What should be the don'ts for you? Do not put off visiting the doctor. That means you should not avoid visiting the doctor. Okay. Then in the second point, don'ts, you have do not avoid medication on time. So do not. This is the don'ts. So in do, what we can do is, what we can write is, take your medicines on time. So here if it is do not avoid, that means here it should be take your medication on time. Take a suitable diet. That means you should eat proper food and avoid eating junk food. Here you can write don'ts, avoid eating junk food. So in don'ts, if you have avoid physical stress and exertion, so in do's you can have take rest, relax. Take rest and relax. Rest in a properly ventilated room, and in don'ts, do not remain with all doors and windows shut. And you should not keep your doors and windows shut and remain inside. Have cheerful thoughts, courage, positive attitude. That means you should always be cheerful. This is the do's part. And do not lose hope and courage and be brave. So you should never lose hope and you should never lose your courage and you should always be brave. So these are the do's and don'ts. This is the table, which is a kind of writing skill which may come in your 10th grade. Now this is the next question. You already know that homophones are pairs of words that sound the same but differ in spelling and meanings. Now about homophones, we have already done in the previous lessons. What are homophones? They sound the same but their spellings and meanings are different. You can see the example. Some, S-U-M, some, S-O-M-E, some. Both are some. We pronounce them as some. But the spelling is different and their meanings are also different. The same way, you can see over here, there are examples. Bat. One bat is a bird, a mammal, and the other bat is a sports or games equipment. Such words are called homographs. Such words are called homographs. That means the same word, same spelling, same pronunciation, but can have different meanings according to the sentence. They are called homographs. But same words with same pronunciation but different spellings are called homophones. So this part is very important. Homophones and homographs. What they are actually, this part which you say. Now make pairs of sentences of your own to point out the different meanings of the following homographs. So here we have to write the different meanings of the homographs, and you can also make sentences. You can have sentences of this. Now this entire thing I am going to give you in my notes, the writing, the answers which I will be giving you at the end of the lesson in the description box. There you can find all these things, but one example I can give you over here. Now fine. You need pairs of sentences with different meanings, or they should be homographs. So fine, the first word is fine. One fine is I am good, I am fine. When we ask anyone, how are you? The person says, oh, I am fine. That means you are good. And one fine is the fine that is charged as a punishment by the policeman or anyone. As a punishment, some fine is, you have to pay some fine.
For example, late payment of fees, you have to pay a fine. So that kind of thing. The school authorities took fine of 100 rupees every month if the fees is paid late. Okay. So this kind of words, they are called homographs. That is, they pronounce, you can pronounce them in the same way. You can write them in the same way. That is, the spellings are same, but their meanings differ according to the sentence, according to the context, how they are used. So all these words, 8 words are there. All these 8 words I shall be doing with you all in this notes section, which you can find in the description box. Now let's learn line by line and understand what this chapter is all about. This chapter is all about, there are 3 characters in this: Sue, Johnsy and Behrman. These 3 characters, all the 3 characters are artists staying in poor suburbs of New York. That means they are not very rich, they are struggling artists, and therefore they are living in some poor suburb area of New York. And Sue and Johnsy are from 2 different places, and they have come over here when they met over here in New York, and they found that they have same work or same kind of living. Then they shared the room over there. They shared a room in New York, and they set up a small studio, where an artist, a small artist, they do for their works, they arrange their room in such a manner. For example, painters and all such kind of thing. So these people, they arrange all the necessary equipments in a small room that they call as a studio. So this is what we are going to learn, and how the last leaf, what is the meaning of this last leaf of the lesson, we are going to learn in the entire lesson. In this one video only, I'll complete the entire lesson. Before going ahead, only one thing that I always ask you, please do like the videos and also subscribe the channel if you are new to it, and please do share with your friends also, as everyone require some explanation. So let's go ahead. We shall start reading. In the poorer parts of New York, there was a colony where many struggling artists lived. In the poorer parts of New York, that means in New York City, New York is such a big city, in that New York City, some poorer parts means where the workers people live. Basically, it's not that rich area, or the buildings, there are no big buildings. Maybe there are small apartments where people who don't earn much, or who earn very little, less, meager, those kind of people stay over there, who meet their needs by working hard, or by working daily wage earners, you can say. So they lived there. In the poorer parts of New York, there was a colony where many struggling artists lived. So these struggling artists lived in this colony. Among them were Sue and Johnsy. Now among these many struggling artists, there were these 2 artists named as Sue and Johnsy. They had come to New York from different parts of the United States. Now they were not friends, they were not relatives, they were not sisters, cousins, nothing. They had come over here from the different parts of United States. When they met, they found that they shared the same interest. They both were artists, so when they met, they found that they shared the same interest. That means they both were interested in the same thing. And they became friends, and therefore they became friends. Naturally, when we have some same interest in same thing, 2 different people, then we become friends. They shared a flat. That means, because single person hiring a flat, it may be costly for them. So they, both of them, because they shared same interest, they were interested in the same kind of work, therefore they shared a room, a flat, and set up a joint studio. And they set up a joint studio. For the studio, I said already, a small room kind of thing with all the necessary equipments that are required for any artist. So that is called a studio over here, or you can say a place where an artist or a photographer works. That part you can say as a studio. Trying to earn a living through art, and these 2 people, they were trying over here to earn their living, that is to earn money through art. Johnsy was small and thin and not very strong. Now among the 2, Sue and Johnsy, Johnsy was very small and thin.
Jauncey was not so strong in build. After spending a few months in New York, she became ill with pneumonia. Now, after spending few months, that means after coming to New York, just after a few months, she fell ill, or she became ill. She became ill with pneumonia. Pneumonia is a disease. Pneumonia is a disease which you can say of lungs, where you have fever. Lungs. In those days, it was not easy to cure pneumonia. Now, in those days, now we are talking of olden times. In those days, it was not easy to cure pneumonia. Now, in today's time, it is easy, but still we have to take care. But in those days, it was really very difficult to cure pneumonia patients. Though Sue looked after her well, Jauncey showed no signs of improvement. Now, though Sue, she was just a stranger and she became friend over here, but still she looked after Sue very well. But still Jauncey was not showing any signs of improvement. One day, the doctor told Sue that Jauncey had one chance in 10. Now one day the doctor used to come to visit them to see how Jauncey was. So one day the doctor told Sue that Jauncey had one chance in 10. That means 1%. One chance in 10, that means 1 out of 10. 1 out of 10 means only 1%. Or 10% you can say, not 1%, 10%. So she has only one chance of 10, that means only 10% chances, and the chance is for her to want to live. And that chance is that if she wish to live, if she wants to live, only then she can stay alive. Otherwise she will not stay alive. He said, your little lady has made up her mind. मतलब उसने अपना मन बना लिया है that she is not going to get well, कि अब वो बिल्कुल ठीक नहीं होगी. She has made up her mind that now she is not going to get well, and therefore her chances of recovering back are very less. So he told Sue that medicines alone did not help if the patient did not wish to live. Naturally, it is the patient's will also to live works along with the medicines, है ना. किसी की सिर्फ दवाइयाँ काम नहीं करती, कभी कभी जो इच्छा शक्ति होती है जीने की वो भी बहुत होनी चाहिए. इच्छा शक्ति नहीं हुई तो इंसान को दवाइयाँ भी कोई काम नहीं करती. The same thing happened over here. He told Sue that medicines alone did not help if the patient did not wish to live. That day, Jauncey just lay in bed without making any sound or movement. तो जिस दिन डॉक्टर आए थे देखने के लिए, that day she just lay in bed, ऐसे ही पड़ी थी, without any sound or movement. She did not made any sound or movement. First, Sue thought that she had fallen asleep. But then she noticed that Jauncey was looking out of the window and was counting something again and again in a very low voice, almost a whisper. So at first when Sue saw her, she thought that Jauncey is sleeping. But when she saw her again, she noticed something that Jauncey is not sleeping. In fact, she saw that she was counting something. She was trying to count something again and again, and that too in a very low voice. बहुत ही धीमी आवाज में, जैसे मानो सिर्फ विस्पर कर रही हो, एकदम फुसफुसा रही हो, उतने धीमे आवाज में वो बातें कर रही थी. वो कुछ गिन रही थी, बातें नहीं करती, कुछ गिन रही थी. Sue too looked out of the window. मतलब विंडो से बाहर देखकर वो ऐसा सब गिन रही थी ना, तो सू ने भी देखा बाहर विंडो से. But there was nothing to see. लेकिन बाहर तो ऐसा कुछ नहीं था. Only an old ivy vine gnarled and decayed at the roots climbed halfway up to the brick wall. तो बाहर क्या था? What was there outside? सिर्फ एक पुरानी ivy vine tree थी वहां पे. Gnarled and decayed at the roots. Gnarled मतलब twisted, टेढ़ा मेढ़ा हुआ. यहाँ पे दिया हुआ है मीनिंग. झाड़ होते हैं मोस्टली, जैसे कोई झाड़ तो सीधे हो जाते हैं, बट सम घूमे हुए रहते हैं पूरे ट्विस्टेड. तो वैसा आईवी वाइन भी यहाँ पे दिया गया है. व्हाट इज एन आईवी वाइन? अ स्ट्रॉन्ग क्रीपर. आईवी वाइन एक क्रीपर है, बट वो स्ट्रॉन्ग क्रीपर है. नॉर्मली क्रीपर्स क्या होते हैं? जमीन पे जाते हैं या किसी चीज का सपोर्ट लेकर ग्रो होते हैं. और लेकिन स्ट्रॉन्ग क्रीपर्स का जो स्टेम होता है वो थोड़ा मजबूत होता है. सो आईवी वाइन अ स्ट्रॉन्ग क्रीपर विद ग्रीन लीव्स एंड येलो बेरीज. ग्रीन लीव्स हैं और येलो बेरीज लगे हुए. बेरीज स्मॉल स्मॉल फ्रूट्स. तो सिर्फ एक आईवी वाइन था जो ग्नाल्ड यानी ट्विस्टेड था एंड डिकेड एट द रूट्स, और वो जड़ से कंप्लीटली डिके हो चुका था, सड़ चुका था.
क्लाइंब्ड हाफ वे अप द ब्रिक वॉल, और सामने जो ब्रिक वॉल दिखाई दे रही थी वहां पे सिर्फ वो थोड़ी ही दूरी पर क्लाइंब हुआ. यू कैन सी दिस पार्ट ओवर हियर. क्लाइंब्ड हाफ वे अप टू द ब्रिक वॉल. एक वॉल होगी कोई बिल्डिंग को, फेंस समझ लो, तो वहां पर हाफ वे ऊपर तक वो आया हुआ था वाइन ट्री. द कोल्ड ब्रेथ of autumn had taken away most of the leaves. The cold breath of autumn, that means the cold winds, यहाँ पे breath means winds of autumn, autumn season जो normally दिवाली के बाद में, बारिश के बाद में रहता है, had taken away most of the leaves, और बहुत सारे most of the leaves इस ठंडी हवाओं के वजह से झड़ चुके थे. Only the skeleton branches were left. सिर्फ जो branches है, skeleton branches, यानी कि skeleton means बिना किसी पत्तों के खाली ब्रांच, सिर्फ ब्रांच है, उसमें कोई पत्ता नहीं है. स्केलेटन ब्रांचेस. ओनली द स्केलेटन ब्रांचेस वर लेफ्ट क्लिंगिंग टू द ब्रिक्स. क्लिंगिंग टू द ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स से अटके हुए, क्लिंगिंग अटके हुए, और स्टक और अटैच्ड यू कैन से. व्हाट इज इट डियर आस्क्ड सू. तो सू ने पूछा क्या देख रही हो, व्हाट आर यू लुकिंग एट इट. 6 said Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100. तो सू बोलती है 6, सॉरी जॉन्सी बोलती है 6. They are falling faster now, और अब तो वो और जल्दी जल्दी गिर रहे हैं. 3 दिन पहले तो यहाँ एक 100 से भी ज्यादा लीव्स थे, है ना. They were more than almost 100. मतलब she is talking about the leaves. जो अभी आएगा हमें पता चलेगा कि जॉन्सी was counting leaves. And 3 days before there were more than hundreds of leaves, and now only 6 have left. It made my head ache to count them, but now it's easy. There goes another one. There are only 5 left now. 5? What dear? अब इस सू को समझ में नहीं आ रहा है कि जॉन्सी क्या कह रही है. What Johnsy is trying to say? 5? क्या 5? मतलब जॉन्सी कह रही है कि जब 100 लीव्स थे तो मेरा सर चकरा जा रहा था उनके काउंट करते हुए, बट नाउ इट्स इजी, और लेकिन अब आसान हो गया है क्योंकि देयर आर वेरी लेस रिमेनिंग ऑन द ट्री नाउ, एंड देयर गोज अनदर वन. मतलब पहले पिछले पैराग्राफ में हमने देखा देयर वर 6, बट नाउ देयर आर 5 ओनली. देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ. तो भी सू को तो समझ में नहीं आया व्हाट 5 व्हाट डियर. लीव्स ऑन द आईवी वाइन. तो जॉन्सी बता रही है क्या 5. जब सू ने पूछा ना क्या 5, तो वो बता रही है लीव्स ऑन द आईवी वाइन. व्हेन द लास्ट वन फॉल्स आई मस्ट गो टू. और जब आखिरी लीफ गिर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी चली जाऊंगी. आई हैव नोन दैट फॉर 3 days. और वो पिछले 3 दिन से मुझे पता है. मैं वो लीव्स इसीलिए गिन रही थी क्योंकि ये लीव्स सारी, जिस दिन ये सारी लीव्स, जिस पल सारी लीव्स झड़ जाएगी उसी पल मैं भी चली जाऊंगी. डिडंट द डॉक्टर टेल यू. तो जॉन्सी पूछती है अरे डॉक्टर ने तुमको नहीं बोला कि मैं अभी मरने वाली हूँ. ओह आई नेवर हर्ड ऑफ सच नॉनसेंस सेड सू. तो सू कहती है व्हाट नॉनसेंस इज दिस, क्या बकवास है. व्हाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल. ओल्ड आईवी लीव्स और तुम्हारा अच्छा होना क्या कनेक्शन है, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. एंड यू यूज्ड टू लव दैट वाइन सो. और तुम्हें तो वो वाइन इतना अच्छा लगता था. डोंट बी सिली. द डॉक्टर सेड दैट यू हैड एक्सीलेंट चांसेस ऑफ गेटिंग वेल. तो पागलपन मत करो. डोंट बी सिली, डोंट बी मैड. द डॉक्टर इज सेइंग दैट यू हैव एक्सीलेंट चांसेस ऑफ गेटिंग वेल. मतलब अब यहाँ पे डॉक्टर ने क्या कहा था वो तो हमें पता है ना. She had only 1 chances of getting well out of 10. बट पेशेंट को तो हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि आपके चांसेस नहीं है बचने के. हम उसको तो यही बोलेंगे अरे नहीं तुम ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा तुमको. तो सू वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम वे. शी सेड दैट डॉक्टर सेड दैट यू हैड एक्सीलेंट चांसेस ऑफ गेटिंग वेल. टेक सम ब्रॉथ नाउ. ब्रॉथ सूप, अ हॉट सूप, गरम गरम सूप उसने बोला पी लो. एंड लेट मी गेट बैक टू माई वर्क. तुम थोड़ा सा सूप पी लो एंड लेट मी गेट बैक टू माई वर्क. मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ. बट जॉन्सी जस्ट केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. लेकिन जॉन्सी तो सिर्फ विंडो के बाहर देख रही थी. और क्या देख रही थी? शी वॉज लुकिंग एट द आईवी वाइन ट्री. देयर गोज अनदर. नो आई डोंट वॉन्ट एनी ब्रॉथ. दैट लीव्स जस्ट 4. आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क. देन आई विल गो टू.
तो जॉन्सी कहती है, वो तो बाहर ही देख रही थी, शी वॉज लुकिंग कंटिन्यूसली आउट ऑफ द विंडो, एंड देयर गोज अनदर, और वहां देखो एक और जा रही है, एक और गई. सो अब मुझे कोई ब्रॉथ नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, एंड द लीव्स आर जस्ट 4, एंड विद दैट लास्ट वन, when the last leaf will fall, I will also go. So now she is literally like with the leaves she is also going to die. Johnsy, said Sue, will you promise me to keep your eyes closed and not look out of the window until I am done working? तो जॉन्सी मतलब वो कहती है, जॉन्सी क्या बकवास कर रही हो, क्यों मरने की बातें कर रही हो, जस्ट प्रॉमिस मी दैट यू विल कीप योर आईज क्लोज्ड, अपनी आंखें बंद रखोगे, मुझे प्रॉमिस करो कि अपनी आंखें बंद रखोगी जब तक मैं मेरा काम नहीं कर लेती तब तक. आई मस्ट हैंड दोज ड्राइंग्स इन टुमारो, मुझे क्योंकि कुछ ड्राइंग्स बनानी है और वो मुझे कल के कल देने हैं. आई नीड द लाइट, और वो ड्राइंग्स बनाने के लिए मुझे लाइट चाहिए, अदरवाइज आई वुड हैव क्लोज द विंडो, नहीं तो मैंने विंडो कब की बंद कर दी होती. I don't want you to keep looking at those silly ivy leaves, और मैं नहीं चाहती कि तुम उन silly ivy leaves की तरफ देखो भी, क्यों देखना है तुम्हें, और उस लीव से तुम्हारे लाइफ का कुछ लेना देना नहीं है. तो सू ने बहुत कोशिश की जॉन्सी को समझाने की, और जॉन्सी से प्रॉमिस मांगा कि शी विल कीप हर आईज क्लोज्ड अंटिल सू डज हर वर्क. ट्राई टू स्लीप, ओके, टेल मी एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड, सेड जॉन्सी. तो जॉन्सी कहती है, ठीक है, जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा मुझे बता देना. क्लोजिंग हर आइज मतलब अपनी आंखें बंद करते हुए जॉन्सी कहती है, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल. क्योंकि जॉन्सी जो है पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो गई है उन लीफ के साथ में, आईवी वाइन की लीफ के साथ में, एंड शी थिंक्स कि वो लीफ से उसकी लाइफ कनेक्टेड है, और उसकी सांसें तब तक ही चल रही है जब तक वो लीव्स है उस आईवी वाइन पे, और जैसे ही लास्ट लीफ गिर जाएगी शी विल ऑल्सो डाई. So trying to sleep, said Sue, I must call Bearman up. Sorry, try to sleep, said Sue. I must call Bearman up to be my model for the old man that I am drawing. I'll not be gone a minute. तो वो कहती है, ओके, ट्राई टू स्लीप. सू कहती है जॉन्सी को, सोने की कोशिश करो, और मुझे जाके बेयरमैन को बुलाना पड़ेगा मॉडल के लिए, क्योंकि मुझे ओल्ड मैन का मॉडल चाहिए, जिसपे मैं काम कर रही हूँ उसमें ओल्ड मैन का मॉडल चाहिए, और मैं बेयरमैन को बुला के लाती हूँ. बेयरमैन को बुला के लाने के लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. आई विल बी बैक इन अ मिनट. नाउ हु वाज ओल्ड बेयरमैन? ओल्ड बेयरमैन वाज अ पेंटर हु लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर. मतलब ये लोग जो है फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, और ग्राउंड फ्लोर पे वो बेयरमैन रहता है. बेयरमैन इज एन ओल्ड पेंटर, बट ही वॉज अ फेलियर इन आर्ट. दो ही वॉज अ पेंटर, बट ही हैड नेवर डन एनी सच पेंटिंग कि उससे जिससे उसका नाम हो जाए. ही वॉज अ फेलियर इन आर्ट. For 40 years he wielded the brush. 40 years तक उसने अपनी ब्रश wield की. ब्रश wield की that means he painted with a flourish. Wielded the brush means painted with a flourish. But had not made any money. मतलब उसने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए, लेकिन कभी उसने कोई पैसा कमाया नहीं उन पेंटिंग से. He had been always about to paint a masterpiece, but had never yet begun it. उसने हमेशा एक मास्टरपीस बनाना चाहा है. ओल्ड बेयरमैन ने हमेशा एक मास्टरपीस बनाना चाहा, लेकिन आज तक तो उसने कभी उस मास्टरपीस की शुरुआत भी नहीं की, तो वो बनेगा कहाँ से? For several years he had made only a few paintings. कई सालों से तो उसने सिर्फ कुछ ही पेंटिंग्स बनाई हैं. And he earned a little by serving as a model to the young artists in the colony. और जितने भी यंग आर्टिस्ट थे कॉलोनी में, उन सभी के लिए वो एज अ मॉडल काम करता था. ही यूज्ड टू सर्व एज अ मॉडल. मतलब अगर किसी को भी किसी बूढ़े आदमी की पेंटिंग बनानी थी तो बनाना रहता था, तो वो उसको बेयरमैन को बुला लेते थे, और बेयरमैन को थोड़े से रुपए दे देते थे, क्योंकि वो उनके लिए एज अ मॉडल एक्ट करता है ना. कोई भी चीज़ हमें पेंट करनी है, ह्यूमन फिगर, तो वी नीड समवन इन फ्रंट ऑफ अस. He earned a little by serving as a model to the young artists in the colony who could not afford other models. जो बड़े बड़े दूसरे मॉडल्स को, जो महंगे होते थे, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे. इसीलिए बेयरमैन जो है इन यंग आर्टिस्ट को बहुत हेल्प करता था, उनके लिए मॉडल सर्व करके. He always talked of his coming masterpiece.
और हमेशा वो अपने आने वाली मास्टरपीस के बारे में बातें करता था। मास्टरपीस मीन्स हिज पेंटिंग जो सबसे बेस्ट होगी, सबसे रियल लगती होगी। शी टोल्ड बेयरमैन अबाउट जॉन्सीज फैंसी। अब जो सू गई थी ना बेयरमैन को बुलाने, तो उसने बेयरमैन को बताया जॉन्सी के फैंसी के बारे में। फैंसी मतलब एक डिजायर, कोई चीज जो वो पाना चाहती है, जो करना चाहती है, वैसा, दैट थिंग। तो इमेजिनेशन, यू कैन से इमेजिनेशन। शी टोल्ड बेयरमैन अबाउट जॉन्सीज फैंसी। ओल्ड बेयरमैन वॉज शॉक्ड दैट एनीवन कुड हैव सच इडियोटिक इमेजिनिंग्स। तो ओल्ड बेयरमैन तो एकदम शॉक्ड हो गया था ये सुनकर कि कोई लीफ के साथ में लास्ट लीफ गिर जाएगी तो कोई मर जाएगा, ये कहाँ से, ये क्या चीज़ है। तो ही वॉज शॉक्ड कि ऐसे कोई इडियट इमेजिनिंग कोई रखता है क्या। वॉट, ही क्राइड, लाइक क्या, जैसे उसने आवाज़ निकाली मुँह से कि क्या, जैसे कोई शॉक हो जाता है ना किसी चीज़ के लिए, लाइक दैट। सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी यूज्ड एज अ पंक्चुएशन। हाँ, आपको एग्जाम्स में सेंटेंसेस ऐसे पूछ सकते हैं पंक्चुएशंस के लिए। आर देयर पीपल इन द वर्ल्ड फुलिश इनफ टू डाई बिकॉज ऑफ लीव्स ड्रॉपिंग ऑफ फ्रॉम अ वाइन, है ना, बिल्कुल सही कह रहा है। क्या लोग इतने भी बेवकूफ है जो लीफ के गिरने से, वाइन ट्री के लीफ के गिरने से मर जाएंगे, वो ऐसा सोचने वाले लोग हैं। आई हैव नॉट हर्ड ऑफ सच ए थिंग। मैंने तो आज तक कभी इसके बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं, ना सुना है कभी। वाई डिड यू अलाउ दिस थॉट टू एंटर हर ब्रेन। तो उल्टा बेयरमैन सू को ही बोल रहा है कि तुमने ये सोच उसके दिमाग में आने भी कैसे दी। शी इज वेरी इल एंड वीक सेड सू। द फीवर हैज मेड हर माइंड फुल ऑफ फैंसीज। तो सू ने कहा बेयरमैन को कि वो बहुत ही वीक हो गई है फीवर की वजह से, और बीमार भी रह रही है कब से, और उसका माइंड जो है इस फीवर की वजह से पूरा फैंसी से भरा हुआ है, इमेजिनेशन से भरा हुआ है। दिस प्लेस इज नॉट गुड फॉर मिस जॉन्सी। सम डे आई विल पेंट अ मास्टरपीस एंड वी शैल ऑल गो अवे। यस, सेड बेयरमैन। तो बेयरमैन बोलता है कि ये जगह जॉन्सी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी दिन मैं बनाऊंगा अपनी मास्टरपीस और हम सब यहाँ से चले जाएंगे। मतलब अगर उसने मास्टरपीस बनाई तो बहुत अच्छे दामों में बिकेगी ना, इट विल फेच अ वेरी गुड प्राइस। और फिर बाद में जब बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा तो वी विल गो अवे फ्रॉम हियर। यस बोलते हैं, हाँ जरूर बनाऊंगा मास्टरपीस, ऐसा सोच के सेड बेयरमैन। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग व्हेन द टू वेंट अपस्टेयर्स। अब जॉन्सी सो रही थी जब दोनों भी ऊपर आए तब। सू शोड बेयरमैन द आइवी वाइन दैट जॉन्सी सॉ थ्रू द विंडो। तो सू ने बेयरमैन को वो आइवी वाइन ट्री दिखा दी विंडो से, जो जॉन्सी देख रही थी इतनी देर से। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग। एक दूसरे के पास तो देखने ही लग गए, एक दूसरे के पास में बेयरमैन और सू दोनों भी बिना बोले। एंड देन बिगेन देयर वर्क, और फिर उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। ये जो पार्ट है, दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग, इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने उस आइवी वाइन को देखा तो उस वक्त सारे लीव्स झड़ चुके थे। तो उन्होंने बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखा और फिर अपने काम पे लग गए। आउटसाइड अ कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग कंटिन्यूसली। और बाहर बारिश जो है, बर्फ वाली बारिश जो है, ठंडी जो है, वो कंटिन्यूसली बाहर गिर रही थी। मिंगल्ड विथ स्नो, मिंगल्ड मीन्स मिक्स्ड विथ स्नो। सू क्लोज द विंडो, सू ने दरवाजा बंद कर दिया, विंडो बंद कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन सू woke up, she found that Johnsy was staring at the closed window again with dull, wide open eyes. नेक्स्ट मॉर्निंग जब सू उठी तो उसने देखा कि जॉन्सी उस विंडो की तरफ ही देख रही है और एकदम डल वाइड आइज से, मतलब एकदम फीकी फीकी, जैसे उदासहीन आंखें हो वैसे आंखों से उस विंडो की तरफ देख रही है। दैट विंडो वॉज क्लोज्ड, क्योंकि सू ने रात को क्लोज किया था ना विंडो, क्योंकि बहुत तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बारिश हो रही थी। तो सू हैड क्लोज द विंडो, तो वो वही देखे जा रही थी जॉन्सी। ओपन द विंडो, जॉन्सी कहती है ओपन द विंडो, आई वॉन्ट टू सी, शी ऑर्डर्ड। सू ओबेड। जॉन्सी ने कहा विंडो खोलो, मुझे देखना है बाहर। एंड सू ने उसकी बात मान ली, उसने विंडो खोल दिया। बट लो, even after the rain and the fierce wind that blew throughout the night, there yet stood against the brick wall one ivy leaf. But lo means this was a time for happiness, cheer. Why? क्योंकि इतनी भयानक बारिश और तेज हवाओं के साथ में, मतलब इतनी भयानक बारिश और तेज हवाएं होने के बावजूद एक लीफ जो है वॉल पर अभी तक टिकी हुई थी,
देयर येट स्टूड अगेंस्ट द ब्रिक वॉल वन आईवी लीफ। उस ब्रिक वॉल पे अभी भी एक आईवी लीफ थी, बट विथ इट्स एजेस स्टिल डार्क ग्रीन नियर इट्स स्टेम। मतलब वो जो लीफ थी अभी भी डार्क थी, डार्क ग्रीन उसके स्टेम के पास में, यानी जहाँ से लीफ शुरू होती है नीचे से स्टेम से, वहाँ पर डार्क ग्रीन थी, बट विथ इट्स एजेस टिंटेड विथ येलो। लेकिन उसके जो एज थे, किनारे थे, ऊपर का एज बोल सकते हो, वो दे वर टिंटेड विथ येलो। टिंटेड विथ येलो मीन्स स्लाइटली कलर्ड, जैसे हल्का सा कलर लग रहा था, येलो कलर। इट हंग ब्रेवली फ्रॉम अ ब्रांच सम 20 feet अबाउ द ग्राउंड। और ये लीफ ब्रेवली एक ब्रांच के नीचे या ब्रांच के ऊपर हंग थी, मतलब टंगी हुई थी, और करीब जमीन से 20 feet ऊपर थी। इट इज द लास्ट वन, सेड जॉन्सी। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट। आई हर्ड द विंड। इट विल फॉल टुडे एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम। अब जॉन्सी क्या कहती है? इट इज द लास्ट लीफ। उसको जो लीफ दिखी थी वो बोल रही है कि ये लास्ट लीफ है, और पूरी रात इतनी तूफानी बारिश थी, इतनी हवा थी, फिर भी ये टिकी हुई है, लेकिन आज नहीं टिकेगी। आज तो ये पक्का गिर ही जाएगी। इट विल फॉल टुडे, और जैसे ही ये गिर जाएगी, आई विल डाई एट द सेम टाइम। जॉन्सी वॉज प्रिपेयरिंग हर सेल्फ फॉर द लास्ट जर्नी दैट वन मेक्स अलोन। जॉन्सी अपने आप को इस लास्ट जर्नी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, जो इंसान को अकेले ही तय करना पड़ता है ना। हम अकेले ही मरते हैं, हम किसी के साथ नहीं मरते हैं। जीते जी तो हम साथ में घूम फिर सकते हैं, बट मरते समय हमारे साथ कोई नहीं रहता है। सो शी वॉज प्रिपेयरिंग हर सेल्फ फॉर द जर्नी दैट वन हैव टू मेक इट अलोन ओनली। तो दिस इज वेरी पुअर थिंग विच जॉन्सी वॉज थिंकिंग ऑफ। द फीलिंग वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग विद इन हर। और ये जो फीलिंग थी, मरने की फीलिंग, कि वो लीफ गिरते ही मैं मर जाऊंगी, वो लीफ बहुत स्ट्रॉन्ग थी उसके अंदर, ऐसे वाकई में वो गिर ही जाएगा लीफ और वो मर ही जाएगी। The ties of Sue's friendship and other things on the earth became loose one by one. और जो टाइज था, टाइज मतलब बॉन्डिंग थी, जो सू के साथ में या दूसरे लोगों के साथ में या दूसरी चीज़ों के साथ में, वर्ल्डली थिंग्स की, वो टाई जो है धीरे धीरे उसको लूज होती हुई नजर आ रही थी, कि एक एक सब छुट रहे हैं मेरे पीछे, है ना। कहते हैं ना कि हम कितना भी कमा ले या कितना भी कुछ भी कर ले, मरने के बाद तो सब यहीं छोड़ के जाना है। सो सब पहले ही हमको मोह माया से छोड़ देना चाहिए। तो दिस जॉन्सी वॉज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। द टाइज ऑफ सूज फ्रेंडशिप, मतलब उसको उसकी सू की फ्रेंडशिप भी नजर नहीं आ रही थी, और दूसरे थिंग्स भी जो अर्थ पे थे, दे वर एज इफ दे वर बिकमिंग लूज वन बाय वन। मतलब उसने पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था मरने के लिए। द डे वोर अवे मतलब द डे ऑल्सो पास्ट, दिन से शाम हो गई। बट इवन थ्रू द ट्वीलाइट दे कुड सी द लोन आईवी लीफ क्लिंगिंग टू इट्स स्टेम अगेंस्ट द वॉल। बट पूरा का पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, फिर भी इन द ट्वीलाइट मतलब सूरज ढलने के बाद में जो रोशनी होती है, सून आफ्टर द सनसेट बट बिफोर इट इज डार्क, है ना। सूरज ढलने के, पूरी तरह से सूरज ढल जाता है, फिर भी थोड़ी सी हल्की सी रोशनी रहती है, उसे हम कहते हैं ट्वीलाइट। सो इन द ट्वीलाइट दे कुड सी द लोन आईवी लीफ। तो उस ट्वीलाइट में, उस शाम के उजाले में उनको वो लोन मतलब अकेली, सिंगल आईवी लीफ दिख रही थी, क्लिंगिंग टू इट्स स्टेम, जो अभी भी उसके स्टेम से अटकी हुई है, क्लिंगिंग अटकी हुई, टू इट्स स्टेम अगेंस्ट द वॉल से लगकर। एट नाइट अगेन द विंड रेज्ड एंड द रेन पोर्ड। रात को फिर से विंड जो है इतनी जोर से चल रही थी और जोर से बारिश हो रही थी। रेन पोर्ड मतलब इट रेन फेल। नेक्स्ट डे व्हेन इट वाज लाइट इनफ, जॉन्सी आस्क्ड सू टू ओपन द विंडो। और नेक्स्ट डे जब अच्छी खासी रोशनी थी, दिन का उजाला था, तो जॉन्सी ने फिर से कहा सू को टू ओपन द विंडो। द आईवी लीफ वाज स्टिल देयर। मतलब ओपन किया उसने विंडो तो आईवी लीफ अभी भी वही थी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट। जॉन्सी उस लीफ को देखते हुए लंबे समय तक वहां पर ऐसे ही पड़ी रही। देन शी कॉल्ड सू डियर, शी सेड, I've been a bad girl. Something has made a last leaf stay there to show me how wicked I was. It is a sin to want to die. बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे उसने कहा है। जॉन्सी ने सू को बुलाया। पहले तो वो थोड़ी देर तक उस लीफ को देखती रही, फिर उसने सू को अपने पास बुलाया
और कहा कि सू डियर, दैट मीन्स माई फ्रेंड सू, शी सेड आई हैव बीन अ बैड गर्ल, दैट मीन्स आई वॉज रियली वेरी बैड, आई वॉज रियली वेरी बैड। वाई? जॉन्सी क्यों कहती है वो बैड गर्ल थी? क्योंकि वो लास्ट लीफ के गिरने का इंतजार कर रही थी और ये सोच रही थी कि लास्ट लीफ के गिरते ही वो भी मर जाएगी, लेकिन ये सोचना कितना गलत था उसका, इसीलिए वो कह रही है आई वॉज वेरी बैड, आई हैव बीन अ वेरी बैड गर्ल। समथिंग हैज मेड अ लास्ट लीफ स्टे देयर, मतलब किसी चीज ने तो उस लास्ट लीफ को वहां रोक के रखा है। टू शो मी, ताकि वो मुझे बता सके कि हाउ विकेड आई वॉज, कि मैं कितनी बुरी थी। इट इज अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, ये पाप है, मरना चाहना ही एक पाप है, पाप बहुत बड़ा पाप है। हम क्यों मरे? जब गॉड ने हमें ये लाइफ दी है तो वी शुड लिव टू इट्स फुलेस्ट। डेथ नेचुरली आ जाएगी हमें। आफ्टर दैट शी वॉज रेडी टू टेक द ब्रॉथ एंड मिल्क दैट सू बॉट हर, और फिर उसके बाद में तो उसने जो भी ब्रॉथ सू ने लाया वो उसने ले लिया और मिल्क भी पिया। शी ब्रॉट हर, शी वॉन्टेड टू सिट अप इन बेड, और फिर बाद में उसे बैठना भी था, उठ के बैठना भी था। तो देखो ऐसे होता है डियर चिल्ड्रन कि आपके मन की इच्छा कैसी है, कितनी प्रबल है आपके मन की इच्छा, हाउ स्ट्रॉन्ग योर विल पावर इज टू लिव। तो बड़ी से बड़ी बीमारी आने तो यू विल ओवरकम इट। तो ये चैप्टर जो है हमें यही सिखाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वी शुड नेवर लूज होप एंड करेज, वी शुड ऑलवेज बी ब्रेव एट वॉट एवर वी आर डूइंग। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम सब ब्रेव बने हुए हैं, टीचर्स आर टीचिंग, चिल्ड्रन आर लर्निंग, थिंग्स आर गोइंग ऑन स्मूथली, तो वी शुड नेवर गिव अप। बहाने नहीं करने के 100 बहाने, करने के लिए एक ही बहाना काफी है। नहीं करने के 100 बहाने, करने के लिए एक ही बहाना काफी है। तो दिस इज द थिंग। सो आफ्टर दैट शी वॉज रेडी टू टेक द ब्रॉथ एंड मिल्क दैट सू बॉट हर। शी वॉन्टेड टू सिट अप इन द बेड, बेड पे बैठना भी था उसे कि चलो अब मुझे ठीक होना है। Someday I hope to paint the Bay of Naples, और ये बोलते हुए कि किसी दिन मैं बे ऑफ नेपल्स जरूर बनाऊंगी। She wanted to paint that Bay of Naples. Mr. Bearman downstairs was now ill with pneumonia. अब जो नीचे मिस्टर बेयरमैन थे अब वो बीमार हो गए ग्राउंड फ्लोर पे, और उनको निमोनिया हो गया था। The sweeper had found him lying helpless in his room in very wet clothes and shoes. तो कैसे पता चला उनको निमोनिया हुआ है? क्योंकि स्वीपर जो है, जो झाड़ू निकालते हैं, क्लीनिंग पर्सन्स, उन्होंने देखा था, स्लीपिंग स्वीपर ने, कि बेयरमैन जो है अपने रूम में बीमार, बुखार से पड़े थे, पूरे गिल्ले हुए पड़े थे, एंड ही वॉज लाइंग हेल्पलेस, मतलब उनको हेल्प किसी की नहीं मिली थी, ऐसे ही पड़े थे, तो ही नीडेड हेल्प ओवर देयर, और सारे उनके कपड़े गिल्ले थे, जूते गिल्ले थे। He also found some scattered brushes and a palette with green and yellow colors mixed on it. और उस स्वीपर को वहां पे कुछ ब्रशेस भी मिले जिसे हम पेंट करते हैं, ड्रॉ करने के बाद जो पेंटिंग करते हैं वो ब्रशेस भी मिले, एंड अ पैलेट। पैलेट इज अ प्लेट वेयर यू मिक्स कलर्स, जहाँ पर हम कलर्स मिक्स करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा कलर लेकर, वो उसे हम कहते हैं पैलेट, जिसमें छोटे छोटे खन होते हैं। तो वहां पर वो पैलेट भी मिला, ब्रशेस मिले, पैलेट मिला, और उस पैलेट में ग्रीन एंड येलो कलर मिक्स किए हुए थे। 2 days लेटर मिस्टर बेयरमैन डाइड इन अ हॉस्पिटल, और 2 दिन के बाद में मिस्टर बेयरमैन हॉस्पिटल में मर गए थे। ही डाइड ड्यू टू निमोनिया। एज आई सेड ना, निमोनिया इज नॉट क्योरेबल, वॉज नॉट क्योरेबल ड्यूरिंग दोज डेज। द लास्ट आईवी लीफ वॉज स्टिल देयर ऑन द वॉल, और लास्ट आईवी लीफ अभी भी थी वॉल पे। लास्ट आईवी लीफ जो ये यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में, ये लास्ट लीफ जो अभी भी दिख रही है ग्रीन, जो अभी भी टंगी हुई है। इट नेवर फ्लटर्ड और मूव्ड व्हेन द विंड ब्लू, और ये लीफ कभी भी हिलती नहीं थी, डुलती नहीं थी, कुछ नहीं, जितनी भी हवा बह लो वो कभी नहीं गिरती थी, कभी हिलती नहीं थी। नेवर फ्लटर्ड मीन्स इरेग्युलर शेकिंग मूवमेंट व्हेन द विंड ब्लू। इट वॉज बेयरमैन्स मास्टरपीस। एक्चुअली ये लीफ बेयरमैन ने बनाई थी। जब लास्ट लीफ गिर गई थी, याद है मैंने आपको ऊपर बोला दोनों ने देखा एक दूसरे को, बेयरमैन और सू ने, उसी वक्त गिर चुकी थी। तो उसी रात बेयरमैन ने उस बारिश में उधर वॉल पे चढ़कर वो लीफ बनाई थी, इसीलिए वो गीला हो गया था। नेक्स्ट डे स्वीपर को गीला मिला था, उसके कपड़े गीले थे,
पैलेट था, ग्रीन और येलो कलर था वहाँ पे, और वो हेल्पलेस पाया गया और उसे हॉस्पिटलाइज किया गया और 2 दिन बाद निमोनिया से उसकी डेथ हो गई थी। तो ये जो लीफ थी, जिस लीफ जो एकदम असली लग रही थी और जिस लीफ को देखकर जॉन्सी में जीने की चाह उठी और वो उसने मरने का ख्याल अपने दिमाग से निकालकर वो जीने लगी थी। तो ये जो चीज़ है जिसने एक मरते हुए इंसान को जीने की राह में लेकर आ गया, दैट इज कॉल्ड द मास्टरपीस। तो ये बेयरमैन का मास्टरपीस था। ही हैड पेंटेड इट देयर दैट नाइट व्हेन द लास्ट लीफ हैड फॉलन। तो ये बेयरमैन ने कब पेंट किया था? जब लास्ट लीफ गिर चुकी थी, तब उसने पेंट किया था। सो अडेप्टेड फ्रॉम द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है ये द लास्ट लीफ। उस बुक में से ये पार्ट एक्सट्रैक्ट जो है लिया गया है। तो इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म हो जाता है। अब बचे हमारे मार्जिन क्वेश्चन आंसर्स, और मैंने वर्कशॉप के बताए थे एंड मैंने वार्मिंग अप के बताए थे, मार्जिन क्वेश्चन आंसर्स और वर्कशॉप। ये तीनों का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पा सकते हो, वहां से आप यू कैन टेक डाउन द क्वेश्चन आंसर्स। तो आज के लिए हम यही खत्म करते हैं, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।